Yesterday we were discussing about fishery. The last heading was fishery only. Students, mute your mic. Sound is coming. Abhishek, from your mic, sound is coming. Farhan, यस सर. माइक म्यूट करो बेटा, आवाज आ रही है. Yesterday, whatever I am writing on the board, it is clearly visible. साक्षी, यस सर. दीदी को भी पढ़ा लो. No problem. Excuse me, sir. Yes. Sir, your video is not clear to us. Everybody is facing problem in watching video. No sir. Maybe No, sir. Angad, maybe Sir, network what? issue is there. Now mute your mics. This thing which the words which I have written on board, is it clearly visible? Sakshi, sit properly. कायदे से बैठने पीटना शुरू करेंगे अभी. यस सर, कायदे से बैठ रहे हैं. Yes, अभिषेक दिखाई दे रहा है. फरहान. Okay. Yesterday we were discussing about fishery, that it includes all those animals which are basically kept in water for our economic point of view. Okay. I have tell few things like it includes fishes first. Next is shellfishes. Another is pearl oyster. And many other things are also there. You can understand it. The things, the animals which are kept in water to get economic benefit, that all has been grouped under heading fishery. Okay. Now see what we have written. It is an industry which includes catching, processing and selling of fishes, shellfishes and other aquatic animals. This thing I have told you. Aquaculture involves production of useful aquatic plants and animals like fishes, prawn, pearl, oyster, etc. Prawn, everybody is knowing what is prawn? Jhinga. Jhinga. Yes sir, झींगा. It is a type of fish which contains large amount of protein, इसलिए ये ज़्यादा famous है. ठीक है. Now this fishery is divided in two main branch. One is pisciculture and another is pisciculture and aquaculture. Word aqua means simply what? Water. Culturing in water is called as aquaculture, but among that things we exclude the fishes. Fishes के लिए अगर याद हो, हमने फाइलम पढ़ा है, क्लास पढ़े हैं, तो वहां पर एक अलग क्लास था. कौन सा? रेप्टिलिया, मेमलिया, एव्स, स्पीसीज, है ना, और एम्फीबिया. तो दिस स्पीसीज, दैट क्लास इंक्लूड्स ओनली फिशेस. तो the group which involves only culturing of fishes has been kept under pisciculture. Okay. तो फिशरी के दो मेन ये जो पॉइंट्स हैं, ये सारे आ जाएंगे किसमें? एक्वाकल्चर में. और ये ऊपर वाला चला गया pisciculture. Okay. Now come to next. Common freshwater fishes includes, name has been given. One thing which is not mentioned in notes about fishery, that is important also. I have not mentioned because earlier in some classes it has been taught to you. Mute mic फरहान, बार बार बोलना पड़ रहा है. माइक म्यूट करो. पंखा बंद कर लो फरहान, तुम्हारे यहाँ से पंखे की आवाज ज्यादा आ रही है. तुम्हारे आसपास कहीं फैन चल रहा है. Okay. If we are anybody who are connected right now, किसी के घर या आसपास कहीं मछली वगैरह का देखा है, मछली पालन? Anybody who can share his view? यस सर. हाँ बोलो. सर मैं देखी हूँ. हाँ, क्या करते हैं भाई? घर पे है तालाब की अगल बगल कहीं है? सर नहीं, घर के पास में ही है.
क्या करते हैं उसमें, कुछ देखा है? सर हाँ, उसमें वो जाल वाले डाल के सब निकालते हैं, फिर फेंकते हैं सब। अच्छा, बस मछली और निकालना ही दवा ववा देखी हो, भी। ये नहीं देखी हो कि कैसे मछली सर उसमें डालते हैं? सर नहीं, ये नहीं देखी हूँ। हाँ, बस अपने काम वाला देख लेना है कि खाने से मतलब है तो निकालने से मतलब है। ठीक है, और कोई जिसको कुछ आइडिया हो? यस एनीबॉडी? सर। हाँ बोलो। सर पहले वो लोग छोटे छोटे बच्चे को डालते हैं, हम्म जिसकी वजह से वो बड़े होते हैं, तब उन लोग को जाल निकाल के डालते हैं, फिर रेगुलर उन लोग को भोजन देते रहते हैं वो लोग। और कुछ? एनी साइंटिफिक अप्रोच किसी के पास कुछ है रिलेटेड टू दिस टॉपिक? श्रेया, आदर्शिका, पूजा एंड आकांक्षा यादव, यस सर। वीडियो ऑन करो। श्रेया, आदर्शिका, पूजा एंड आकांक्षा यादव। यार बार बार बोलना पड़ता Yes, है, sir. ब्लॉक कर दूंगा फिर बस ठीक हो जाएगा। सर आप साइंटिफिक अप्रोच की बात करते, कुछ बता दे सर। हाँ, साइंटिफिक अप्रोच इफ एनीबॉडी इज नोइंग, यस टेल मी अंगद। सर देखे तो नहीं है लेकिन मालूम है कि हाँ, वो हाँ, एक ही पॉन्ड में वो बॉटम फीडर, मिडिल फीडर और टॉप फीडर तीनों तरह की मछलियां रखते हैं, और जिसके वजह से वो जो फूड होता है सर ना, उसको कम्प्लीटली यूटिलाइज कर लेती है मछलियां। अगर वो टॉप फीडर जो है, अगर उसका जो एक्सक्रेटा है उस पर भी कुछ मछलियां ऐसी रहती हैं जो बॉटम फीडर होती हैं या फिर मिडिल फीडर होती हैं, जो उस पर फीड कर सकती हैं। वेट करो, वेट वन और हु इज पूजा सिंह? पूजा, 2-3 times I have taken your name, now I am going to block you from this system। मैं ब्लॉक कर रहा हूं जो भी पूजा है, फिर बाद में मुझसे कांटेक्ट करते रहना। यस, हाँ, अंगद ने जो बताया दैट वाज करेक्ट। अच्छा, राइट नाउ 21-22 आर देयर। एनीबॉडी ऑफ यू इज हैविंग एक्वेरियम एट होम? किसी के घर एक्वेरियम है? किसी के घर नहीं? ओके, नो प्रॉब्लम। Now see what happens if we are involved in fish farming. So we have to keep in mind 3 basic things, that fishes are of 3 main types। 3 तरीके की fishes होती हैं। First one is surface feeder. These things has not been mentioned in your notes. Surface feeder. Second is middle feeder, and next is bottom feeder। ठीक है, surface feeder, middle feeder and bottom feeder, this is clear from their names also कि why they have been grouped like that। Like suppose we have taken a pond, हमने एक तालाब लिया, इस तालाब में जब हम मछलियां डाल दिए तो उसके बाद अगर जब हम इसमें चारा डालना शुरू करते हैं मछलियों के लिए, तो these fishes have been grouped in 3 categories on the basis of their mouth। वो अपने माउथ की ओपनिंग के आधार पे इनको डिवाइड किया गया। जैसे कुछ मछलियां ऐसी हैं, जैसे सरफेस फीडर है। सरफेस फीडर का डायग्राम तो मैं बहुत बढ़िया जान ही रहे हो कैसा बनाता हूँ। सरफेस फीडर की बात करेंगे तो इसका मुंह थोड़ा ऊपर की तरफ उठा होगा। मीन्स व्हाट, कि ये जब भी खा पाएगी, ये नीचे का खाना खा ही नहीं सकती है। whenever it has to take food, the fish will move to surface। जो मिडिल फीडर होगी, it will have nearly straight mouth part, कि ये आराम से बीच में जब चारा ऊपर से नीचे आएगा तो उसको खा सकती है। और जो बॉटम फीडर होगी, डायग्राम वायग्राम देख लेना भाई, कोई अब ये मत कहने लगना कि सर ये तोता जैसा लग रहा है। ठीक है, जो बॉटम फीडर होगी उसका माउथ पार्ट का स्ट्रक्चर ऐसा होगा कि वो सिर्फ सरफेस का ही मटेरियल्स को खा सकती है। मैंने एक्वेरियम इसलिए पूछा क्योंकि व्हेन वी कीप एक्वेरियम, या हमारे यहाँ लैब में जब एक्वेरियम में मछलियां थी, अगर कभी ऑब्जर्व किया हो तो इन दैट एक्वेरियम एक छोटी सी या 2 ब्लैक कलर की मछलियां थी, विच आर कॉल्ड एज क्रोकोडाइल फिश। वो कभी ऊपर आती ही नहीं है, वो हमेशा नीचे चिपकी रहती हैं। एंड व्हाट इज देयर रोल? व्हेन we put food materials on the surface feeder will consume this one। जब ये फूड मटेरियल धीरे धीरे नीचे आना शुरू करेगा तो बॉटम फीडर्स यहाँ पे कंज्यूम कर लेंगी, बॉटम नहीं मिडिल फीडर्स,
एंड सरफेस फीडर्स आर ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द सरफेस, ये हमेशा नीचे ही रहती हैं और इनका माउथ पार्ट इससे चिपका होगा सरफेस से. टू कंज्यूम देयर फूड दे हैव टू wait, and when the food particles will stick on the bottom, they will start to consume it. Okay, this point is clear. Surface, middle and bottom. इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा, ये क्वेश्चन एग्जाम्स में कई बार आया है कि what are the basic advantage या why we used to keep 3 different types of fish on the basis of their mouth. तो इससे फायदा क्या होगा कि whatever the food we are giving, we are putting in our pond, that food is completely utilized. वो फूड पूरी तरीके से यूज हो जाएगा. सपोज करो कि हमने सिर्फ सरफेस फीडर को पाला, तो क्या होगा, जो 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 फूड सरफेस पे रहेगा that food will be used, बट जो नीचे चला आएगा वो सारा सड़ेगा तो इस पॉन्ड में क्या होगा, इन्फेक्शन फैलेगा जिससे मछलियां बीमार पड़ेंगी. ठीक है, एनी डाउट इज देयर? तो पहला फायदा क्या हुआ कि द फूड इज कंप्लीटली यूटिलाइज्ड. सेकंड एडवांटेज इज दैट कि एट द सेम टाइम वी कैन कीप डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिश इन द सेम पॉन्ड. एक ही तालाब में हम अलग अलग मछलियों को यूज कर सकते हैं. ठीक है, ये एक तरीका हुआ फिशरी का. एक और इसमें चीज आती है फिश फार्मिंग में, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर, ये तो जो डिवीजन था, दिस डिवीजन हैज बीन डन ऑन द बेसिस ऑफ देयर माउथ पार्ट. On the basis of feeding habit, अब फीडिंग हैबिट पे भी आ जाए तो इसमें भी मछलियां 2 तरीके की होती हैं. कुछ ऐसी होती हैं जो दिन में खाना पसंद करती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो रात को खाना पसंद करती हैं. मैंने इसीलिए शुरुआत में पूछा था कि साइंटिफिक अप्रोच क्या है. अब क्या होगा कि सपोज करो कि हमने मछलियां, एक ही तालाब है हमारे पास, उसमें हमने डे वाली मछलियों को पहले देख लिया कि ऐसी मछलियां रखें जो दिन में खाना पसंद करें. तो अब इस दिन में भी 3 वैरायटी हो गई. ठीक है, कि अब ये जब भी खाएंगी तो दिन में ही खाएंगी. फिर हम नाइट में गए, नाइट की 3 वैरायटी को ले लिए, सरफेस, मिडिल, बॉटम. तो what will be the advantage? The main advantage will be that at the same time in a same pond we can keep about 6 different types of fishes. हम 6 अलग अलग तरीके की मछलियों को तालाब में रख सकते हैं. And there will be no competition among them regarding their feeding habit. उनके खाने को लेके उनके में आपस में कोई कंपटीशन नहीं होगा. अब इसमें ये ध्यान में रखना होता है कि पता चला एक छोटा सा गड्ढा खोद दिए, लोकल लैंग्वेज में विच कैन बी कॉल्ड एज गड़ही, और उसमें हमने 6 मछलियां डाल दी 6 तरीके की. तो खाने की तो समस्या नहीं आएगी, लेकिन रहने की समस्या तो आएगी. ठीक है, इसलिए अगर हम इस तरीके की साइंटिफिक अप्रोच के फिश फार्मिंग करते हैं तो इसके लिए पर्टिकुलर एरिया प्रिस्क्राइब्ड होता है, बुक्स वगैरह में दिया होता है कि आप कितनी मछलियां उसमें डाल सकते हैं, तो उसके लिए कितना एरिया होना चाहिए, डे वाली कौन कौन सी मछलियां हैं, रात की कौन कौन सी मछलियां हैं, ये सब कुछ अवेलेबल होता है बुक्स में. एनी डाउट इज देयर? शालिनी? सर. यस. सर, ये मछलियों में ऐसा क्या होता है जो उनको रात को ही खाने के लिए रहता है, या फिर वो दिन में ही केवल खाती हैं? ऐसा कुछ होता नहीं है. एनिमल्स को डिवाइड किया गया नॉकटर्नल और डायर्नल में. ठीक है, जैसे चमगादड़ है, उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि वो रात को ही, ये है कि वो नॉकटर्नल एनिमल में ग्रुप्ड किया गया, उसी बेसिस पे उनका डिवीजन हुआ है. ठीक है, उनके पास अलग से कोई. हाँ सर, लेकिन चमगादड़ में ये तो है ना कि वो रात को बेहतर देखता है दिन के वजह से. चमगादड़ ना रात को बेहतर देखता है ना दिन को बेहतर देखता है, वो फ्रीक्वेंसी पे उड़ता है. हाँ, ये भी तो, लेकिन ठीक है सर. यस, एनी अदर डाउट? ये भी पूछ सर, ये एक तरह का फिशरी ऐसा भी होता है जिसमें ऊपर जो होता है जाली पे, नेट पे हेंस को रखा जाता है, और जस्ट उसके नीचे वो पॉन्ड बना रहता है जिसमें मछलियां रहती हैं. हाँ. और उसके हेंस के एक्सक्रेटा पे वो फीड करती हैं. तो ये देखने को मिलता है सर कि केवल किताबों में ही है? नहीं, ये देखने को मिलेगा. ये सिंपली ये प्रैक्टिस हम वहां करते हैं जैसे हमें पोल्ट्री फार्म भी उसके साथ ही करना है. ये जनरली स्मॉल स्केल जहाँ पे छोटे तालाब होते हैं वहां ये किया जा सकता है कि तालाब के ऊपर हमने पोल्ट्री फार्मिंग के
जो क्या बोलते हैं, जो पिजड़े हैं वो रख दिए जाते हैं। लेकिन यह है कि उसके लिए जो तालाब की साइज अगर बहुत बड़ी होगी तो इस प्रैक्टिस को नहीं करते हैं। दूसरा इसका एक जो डिसएडवांटेज होगा कि अगर अमाउंट ऑफ एक्सक्रीटा इसमें बढ़ता है, इसीलिए ये प्रैक्टिस बहुत कम, बहुत रेयर है, या वही है जहाँ पे छोटे तालाब हैं। ठीक है, अगर एक्सक्रीटा बढ़ेगा तो पॉन्ड में डिकम्पोजिशन का रेट बढ़ेगा। जब डिकम्पोजिशन का रेट बढ़ेगा तो एक टर्म है विच विल कम टू नो, दैट इज BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, उसकी कमी होगी, जिसकी वजह से पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक है, इसलिए इसको हम जनरली स्मॉल स्केल प्रोडक्शन पे ही यूज करते हैं, लार्ज का तो कोई चांस नहीं है। एनी अदर डाउट? अमित सर? Yes, sir. I hope you are also able to understand fishery properly, because myself and you have studied this heading in the same class, at sitting on a same bench. Sitting on a same bench. Yes, yes. Okay. After last time we have studied fishery. Okay. After 15 years. 15 years you are again going to recall your memory, but I have to repeat it again and again every year. Oh, yeah. Anjali? Excuse me, sir. Wait, Anjali. Yes, sir. Are you able to understand this topic? Any problem is there? No, sir. Okay, पापा को भेज नहीं ना रही हो, बारिश में मत भेजना। नहीं सर, आज नहीं जा रहे हैं। हाँ, बारिश में मत भेजना। Before to send him, ask to me. इसके पापा Yes, मुझे बहुत दिन से परेशान है कि सर आपको लाल वाली दही खिलाना है। मैं मना करके रख रहा हूँ। हाँ, आप आएंगे उसी दिन उनको बुलाएंगे, मैं अकेले कितना खाऊंगा। हाँ। चलिए, yes सना, ask your doubt. Sir, from beekeeping, I wanted to ask a question. Yes. Sir, you were telling yesterday that some of the bees are less aggressive and more aggressive. Sir, it is the nature of all the insects. They are aggressive. Like, सब तो काट ही देती हैं सर बिना मतलब का। नहीं, it is just like you girls, कि out of 47, some become more aggressive, some start to cry even on a single stick, and some are not going to cry even after beating with more than 100 sticks also. It is like the same film. All are the girls only. Okay, any more doubt? No, sir. Animals are grouped as per their behaviors, okay? Especially the species, the groups in which more than one types of species are available. Like if we take example of human, so for Homo sapiens, we are only the single species. But if we will study about the evolution of man, so man is not of Homo sapiens type. It is also of 3-4 types: Homo sapiens, Homo erectus, Homo habilis. They are also of different types. They all are human, but they have been grouped differently because on the basis of their habits. उनकी आदत के आधार पे उनको किसी को Homo habilis में डाला गया, Homo erectus हुए, उन्हीं से इवॉल्व करके फिर हम Homo sapiens बन रहे हैं। ठीक है, तो इंसेक्ट्स का क्या है कि इंसेक्ट्स का फैमिली तो एक है, बट दैट फैमिली इज डिवाइडेड इन मेनी क्लासेस, और उस क्लास में भी आगे चले जाएंगे तो सब क्लास का डिवीजन होने लगता है। तो दैट डिवीजन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फीडिंग, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिप्रोडक्शन। सारी बीज ही हैं, ऑल आर हनी बीज। तो स्पीसीज तो कॉमन हो गई हनी बी, ठीक है, बट उनके बिहेवियर के आधार पे हमने उनको जो साइज में थोड़ी छोटी है उनको डिफरेंट ग्रुप में डाल दिया, जो थोड़ी बड़ी हैं, जो पहाड़ों पे रह रही हैं, दैट they have been grouped in that form. Any other doubt? Sir, excuse me, sir. Yes, Farhan. Sir, Farhan, you are honey बनाने का काम. Wait, let me ask first. You have started to join very late. Sorry, sir. शुरुआत में तुम नहीं ज्वाइन होते थे या होते थे? Sir, YouTube पे थे. ओहो, यूट्यूबर हो तुम। चलिए, ठीक है, लाइव में जुड़ना चाहिए। लाइव में एटलीस्ट वी आर एबल टू इंटरेक्ट। थोड़ा सा क्लास वाली फीलिंग लाइव क्लास में आती है, एटलीस्ट जब तुम लोग यूनिफॉर्म में होते हो तो, और मैं भी होता हूँ तो। यस, आस्क। सर, वो जो हनी बनाने का काम होता है वो मेल और फीमेल दोनों मक्खियां करती हैं या सिर्फ फीमेल करती हैं? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पहले होना चाहिए था। मे भी बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। ठीक है, इसके लिए हम एक पूरी लाइफ साइकिल पढ़ेंगे।
अगर एनसीईआरटी बुक होगी तो एनसीईआरटी बुक के लास्ट में जाओगे जहां पर it has been some supplementary materials have been given in NCERT book. Okay, Shreya Singh, yes sir. आंचल सिंह, स्विच ऑन योर वीडियो. देखो मैं एक एक को रिमूव कर रहा हूँ, बार बार बोलूंगा तो रिमूव करता चला जाऊंगा, फिर ऐड नहीं हो पाओगे जिस सिस्टम से क्लास 12th की क्लास चल रही है. Switch on your video. Okay, so this thing we will come to know when we will start to study the supplementary, but it is important thing and you have asked that let me tell you that in bees हमारा जो कंसेप्ट है इसमें हम मेल और फीमेल दो ही जानते हैं. बीज की बात करेंगे तो इनमें एक तीसरा भी ग्रुप हो जाता है which have been grouped under वर्कर बी, उनको हम बोलते हैं वर्कर बी. ठीक है, ऐसा सुना होगा कहानियों में. एक रानी मक्खी होती है, yes sir. मेल्स होते हैं और वर्कर बीज होती हैं. Worker. ठीक है, तो रानी मक्खी जो नाम दिया गया, वी विल स्टडी प्रॉपरली. रानी मक्खी जो नाम दिया गया वो है तो रानी, दैट इज इट इज फीमेल, बट वो नेक्टर वगैरह का काम नहीं करती है. उसके लिए अलग से बने ड्रोन्स या वर्कर बीज. इनका काम है नेक्टर को कलेक्ट करना. ये ले आके इसको इकट्ठा करते हैं कहाँ पर, बी हाइव में. किसके लिए इकट्ठा करते हैं? जो रानी मक्खी है जब वो बच्चे प्रोड्यूस करेगी तो दैट स्मॉल बीज विल फीड ऑन दिस हनी. दैट्स व्हाई द वर्कर बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस. ओके, Yes. रेस्ट वी विल स्टडी प्रॉपरली. अभी तुम्हारा जो डाउट था सिर्फ उसको मैंने कंफ्यूजन को दूर किया. एनी अदर क्वेश्चन? Should I start the new heading because new heading is very much important? Yes, sir. Okay. Come to new heading, that is animal breeding. Animal breeding. Anybody among you can tell me what is the meaning of word breeding? Shreya Singh, Yes, sir. what is breeding? Sir, it means sir, it means a group of. Your voice is not coming properly. Farhan, Abhishek, Angad. Sir, it means the group of animals which are similar in characters, their features, appearance, and so on. Okay, before to know the breeding, first I want to know the definition of species from you people. Anybody can tell me what is species? Species किसको बोलेंगे? Yes sir. Yes sir. Yes, Angad. नहीं वेट, अंगद वेट. So these अभिषेक. Yes, sir. स्पीसीज बताओ. Sir. बहुत कॉमन वर्ड है, बहुत छोटे क्लास से 8th 9th से स्पीसीज सुन रहे हैं. मम्मी. देखो श्रेया सिंह को मम्मी की याद आ गई. यस, अभिषेक बोलो. अभिषेक, सना. No needs of sorry. What I mean to say that the same recording is going to be uploaded on YouTube also. तो YouTube पे जरूरी तो है नहीं कि बस देवस्थली वाले ही पढ़ेंगे. मे बी कि कोई और मेरा फॉलोअर कहीं से पैदा हो जाए तो कहेगा क्या पढ़ा रहे हैं सर, पीछे से मम्मी पापा सबकी आवाज आ रही है. सना. Species are the group, मतलब species are some group of animals which are individually divided which have similar characters. Like एक species का मतलब sir I am unable to 50% nearly it is okay, but 50% is still remaining. One thing is okay, that animals which have similar characters, but one more very important thing has to be included in the definition of a species, then only it will be completed. Yes, Angad? Which can interbreed among themselves. ठीक है. The two basic things which must be included in a species definition is that first, similar character. ठीक है. And second is, mute your mics. Second is interbreeding.
ओके, कैरेक्टर्स एक जैसे हों और वो आपस में इंटरब्रीड कर सकें, तभी हम, जब किसी में ये दोनों चीज कॉमन होगी तो वी विल कॉल्ड इट एज स्पीसीज. ओके, for a very simple example is there to understand species. Take example of cat and tiger. cat and tiger का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, अगर दोनों के बॉडी डिजाइन की बात करेंगे तो एक्सेप्ट साइज दे बोथ आर नियरली सेम, लगभग एक जैसे हैं. साइज को हटा दिया जाए तो बिल्ली और टाइगर दोनों लगभग एक जैसे हैं. अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे हैं कि कैन दे इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स टू प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग, क्या बिल्ली और टाइगर एक साथ इनब्रीड करके नए बच्चे पैदा कर सकते हैं? नो सर, नहीं कर सकते हैं. व्हाई? No, sir. They can't reproduce new individuals. That's why they are nearly similar in their characters, but due to the reason that they can't produce new individuals, tiger and cat has been grouped under two different species. Okay, one more common example which we can observe in our day to day life is cow and buffalo. Both are nearly similar except their color, एक काली है एक गोरी है, इतना ही अंतर है. But they both of them have been grouped in two different species. Why? Because they can't interbreed among themselves naturally to produce new offspring. Okay, so what is species? Species is a group of individuals which have similar characters and which can interbreed among themselves to produce new individuals. उसको हम species बोलेंगे. ठीक है, तो जिनके कैरेक्टर्स एक जैसे हों और वो इंटरब्रीड करके बच्चों को जन्म दे सकें, दैट इज ग्रुप अंडर स्पीसीज. साक्षी, म्यूट योर माइक. ओके, नाउ एनी डाउट? अंजलि? No, sir. दीक्षा? रश्मि? क्लियर है स्पीसीज? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now come to our heading. That was, before species I was asking that what is. सर, हाँ, एक्सक्यूज मी सर. yes, सर, ये जो खच्चड़ की कंडीशन होती है, हाँ, वो स्टेराइल होता है ना, क्योंकि वो हाँ, sterile है. उसके स्पेसिस के बाहर निकल के उसका ब्रीडिंग करा दिया जाता है. डंकी और तो म्यूल का. हाँ, तो ये हॉर्स दो एंड अलग अलग डंकी का. स्पेसिस है. हाँ, दो अलग तो ये अलग 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 स्पेसिस है. हाँ, तो इसमें भी तो ब्रीडिंग हो रहा है ना. तो जो बच्चे पैदा तो हुए वो ना घोड़े की तरह हाँ, है ना गधे की तरह है. इसीलिए तो मैंने बताया और है कि विच स्टेराइल कैन भी है. प्रोड्यूस इंडिविजुअल ऑफ इट्स ओन टाइप, जो अपने जैसे बच्चे पैदा कर सके. ठीक है, और ये जो कंडीशन है, जो वर्ड्स में बोल रहा हूँ उस पर थोड़ा ध्यान देना है. मैंने बार बार एक वर्ड यूज किया है, नेचुरली. आर्टिफिशियली तो हमने पोटैटो और टोमेटो को बना के मिला के एक प्लांट बना लिया, दैट इज कॉल्ड एज पोमेटो. तो इफ ए प्रोड्यूस, कौन है? वेट फॉर वन. कौन? हाँ, और एक मिनट, साधना मैडम, एक मिनट बेटा, वेट फॉर 1 minute एवरीबॉडी. Okay, so what I was telling, कि in species we have to focus on the thing that the process of reproduction or inbreeding should be naturally. Like tomato and potato, I was just telling you the example. Both are two different species, but by the help of scientific approach, now we have produced a plant that is called as pomato. तो पोमेटो हमने बना लिया, इसका मतलब ये नहीं कि पोटैटो और टोमेटो की स्पीसीज एक हो गई, दोनों अलग है. बट दिस ब्रीडिंग हैज बीन डन आर्टिफिशियली. एनिमल्स में भी बहुत सारे एनिमल बनाए गए हैं. टाइगर और लायन को मिक्स करके एक नया एनिमल प्रोड्यूस किया गया विच इज कॉल्ड ए लाइगर. तो लाइगर हमने बना लिया, इट डजंट मीन्स दैट बोथ टाइगर एंड लायन कैन बी ग्रुप्ड इन द सेम स्पीसीज. ओके, नाउ कम टू द वर्ड ब्रीडिंग. आई थिंक अब ये तब से ये वर्ड यूज हो रहा है. ब्रीडिंग मीन्स व्हाट? एक और वर्ड बहुत कॉमन है जिसको हमने सुना है, हाइब्रिड. जिनके यहाँ थोड़ी खेती वेती होती होगी, दे आर नोइंग. ये हाइब्रिड वेराइटी आर यूज्ड इन फार्मिंग. व्हाट इज हाइब्रिड? व्हाई इट इज कॉल्ड एज हाइब्रिड?
सर हम्म, दो स्पीसीज की ब्रीडिंग करा के एक ऐसी स्पीसीज को जनरेट किया जाता है हम्म, जो दोनों से सुपीरियर होती है, हम्म। इसी को हाइब्रिड बोलते हैं। हाँ ठीक है, हाई का मतलब ही हो गया सुपीरियर। सर और यस सना, सर तो दोनों स्पीशीज सिमिलर होते होंगे ना, जब अगर एक सुपीरियर मतलब कि ये जो पूरा जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ये ब्रीडिंग का प्रोग्राम हम साइंटिफिक अप्रोच से पढ़ने जा रहे हैं। इट मींस कि इसमें हम कोशिश ये करते हैं कि दो अलग अलग वैरायटीज या स्पीसीज को भी मिक्स करेंगे। ये जितने कंफ्यूजन आ रहे हैं ये आगे जैसे ही हम इसमें बढ़ेंगे ये अपने आप क्लियर होते जाएंगे, सबके लिए अलग अलग टर्म्स आ जाएंगे कि जहां पर दो अलग स्पीसीज को मिक्स करेंगे उनका टर्म चेंज हो जाएगा। इफ वी आर गोइंग टू मिक्स टू डिफरेंट वेराइटीज ऑफ द सेम स्पीसीज, they have been grouped under different category. Okay, but before Yes, to sir. start, first we have to know the word meaning of word breed. Breed means what? Simply we can say variety. very Okay, like for example right now mango season is coming, different type of mangoes like दशहरी, लंगड़ा और कौन सा तोतापरी, नीलापरी, कालापरी, सब बहुत सारे आम हैं। ठीक है, तो that all आर कॉल्ड एज वेराइटी हमारी भाषा में, या उसी को थोड़े साइंटिफिक अप्रोच में चले जाएं तो इट इज कॉल्ड एज ब्रीड। दैट दिस ब्रीड इज ऑफ दशहरी, दिस ब्रीड इज ऑफ लंगड़ा, जो भी है। व्हेन वी मिक्स टू डिफरेंट वेराइटीज, दैट प्रोग्राम या इट इज कॉल्ड एज ब्रीडिंग। अगर हम दो अलग अलग वेराइटीज को मिक्स करते हैं थोड़ा और अच्छा वेराइटी बनाने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड एज ब्रीडिंग। This example which I was telling you right now is an example of plant breeding. The same thing is applied on animal breeding also. जैसे plant breeding होता है ठीक वैसे ही animal breeding भी होती है। Any doubt is there? no sir. Right now 2022 are there. Anybody is having jersey cow? किसी के घर जर्सी गाय है? किसी के घर हो तो माइक ऑन करके बोलो। अभिषेक, प्रवीण, अंजलि, पल्लवी, नहीं है कुछ भी? जर्सी नहीं है सर। जर्सी नहीं सर है। घर के सामने है। अरे सामने वाले का तुमको क्या पता चलेगा कि वो क्या करता है? प्रवीण यादव कहाँ है? प्रवीण बोलेगा कि पीछे ही पड़ गए हैं, जब तक गाय नहीं पाल लूंगा तब तक सर छोड़ेंगे नहीं। चलो इसका भी माइक ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है, जर्सी का नाम मैंने क्यों लिया, मुझे याद है, तुम्हें हो सकता है नहीं सुना होगा। जब जर्सी वैरायटी हमारे यहाँ आई, हमारे यहाँ मतलब हमारे पूरे एरिया में आई, तो उस वक्त जिनके यहाँ ये गाय होती थी, ऐसी कंडीशन होती थी कि अपने रहने के लिए कूलर पंखे हो ना हो, लेकिन ये गाय जहाँ रहती थी वहाँ कूलर वगैरह इंस्टॉल करना जरूरी होता था, क्योंकि ये गाय बिना प्रॉपर कंडीशन के रह ही नहीं पाती थी। एक तो इट वाज टू मच कॉस्टली, फर्स्ट ड्रॉबैक वाज दैट, एंड अनदर ड्रॉबैक वाज दैट इट नीड्स अ वेरी प्रॉपर केयर, प्रॉपर मेंटेनेंस फॉर इट्स सर्वाइवल। ये पहले ऐसा होता था कि कूलर वगैरह नहीं लगाने पे जर्सी गाय या तो दूध नहीं देती थी या बहुत जल्दी मर जाती थी। थोड़ा अपने पापा वापा लोग से पूछोगे, सारे लोग तो बताएंगे। सर Okay. डीवीपी में तो है, कूलर लगा हुआ है। नहीं डीवीपी तो ठीक है, तो आज के हाँ जमाने सर के कूलर लिए लगा हुआ है। यू आर टेलिंग मी अबाउट डीवीपी। सर मैं एग्जांपल दे रही हूँ, सर डीवीपी में तो लगा हुआ है। मतलब आई एम हैविंग द काउंटेड नंबर कि हाउ मेनी कूलर्स आर देयर। Sir, you would have given example of that also. You were asking. No, why I am asking the same thing, that right now if we are not going to install cooler also, then also they are able to survive. But 5 years 10 years back, if anybody has purchased jersey cow, so before for doing comfort, before for managing comfort zone for himself, he used to manage that things for his cow. Why so? Because that cow was not able to survive in extreme hot or adverse condition. But now these things have been changed. अब हम अगर किसी के घर जर्सी गाय हो, इसीलिए मैंने पूछा, या जैसे अंगद ने बताया कि घर के सामने है, तो अगर उसके घर के सामने है तो वहां पे वो आराम से रहती होगी, उसे बहुत ज्यादा सुख सुविधा नहीं दी गई होगी। तो हाउ दिस द काउ इज सेम, यही जर्सी 10 साल पहले थी,
बट उसमें ये चेंजेस कैसे आ गए? हाउ इट हैज बीन चेंज्ड? बोलो, Breeding. क्या किया गया होगा? सर उसको हाइब्रिड बनाया गया और कैसे उसको कैसे सुपीरियर बनाया कैसे? गया कि- हाइब्रिड तो बना दिया गया, सर, कैसे उसको- क्या किया गया होगा? सर उसको एक ऐसे स्पेसीज के साथ उसका ब्रीडिंग कराया गया होगा जो इस एडवर्स क्लाइमेट में भी ढलने के लायक होगा। एक ऐसे सुटेबल पार्टनर को चूज किया गया होगा। उसके बाद जो ऑफस्प्रिंग आया होगा वो दोनों कंडीशंस को फॉलो करेगा। उसका जर्सी की तरह उसकी मिल्क प्रोडक्शन भी होगी और वो एडवर्स अच्छा, क्लाइमेट को अडैप्ट भी वेट फॉर करके 1 मिनट। केमिस्ट्री क्लासेस कब से हैं तुम्हारी? Second. इसके Right. बाद है सर नेक्स्ट क्लास। Right now it is 9, near about 9 o'clock. Chemistry class is from 10 o'clock. कोई बताओ? Chemistry class? जस्ट आफ्टर दिस क्लास सर। Just after this. Physics की एक और क्लास है। Yes, लास्ट sir. वन। Time, what is the time? 9:20. 9:50 9:20. 9:20 नहीं होगा। 9:20 नहीं है सर। इट मे बी 9:40 और 9:50 सर। Okay, I will, if you people will be ready, so I will send another link for bio class because he is not present, and we will continue this same topic in that class also. Okay, everybody will join at that time. जल्दी बोलो, टाइम खत्म हो रहा है। Yes, sir. हाँ sir. Okay, wait for Yes, that sir. link. Wait for that link at the time of second physics class. उसी के आसपास मैं लिंक भेजता हूँ। Okay? यस सर। Sir, Okay. chemistry होगा ना? अब we are just now, sir has called me कि if rain will stop, he will come. Maybe a little bit timing delay will be there. We will inform you through WhatsApp. ओके थैंक यू सर। Okay. Thank you so much. sir.